नेचुरल नंबर्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे होल नंबर्स के बारे में। उसके बाद बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में। उसके बाद बात कर लेंगे फ्रैक्शन तो हो ही गया। एक चीज़ और बताऊँ? बताइए सर। चलना था। उसमें आवाज़ कौन सी आवाज़? कोई मैं इसको पूरे काटूंगा ना। अभी एक्सप्लेन थोड़ा करना शुरू किया क्या? मैं इसको पूरा लिख दूंगा। हाँ, पोज भी कर दो तो भी चल जाएगा। हाँ ना, ये तो देखो। हाँ बताइए सर। अगर आपके वायरलेस कैमरे से चल रही है, इससे चले ना करना है मोबाइल से उल्टा, तो इसमें माउस भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो माउस से इसको प्ले पॉज कभी भी जब चाहना तब कर सकते हैं। माउस लगा के भी, हाँ माउस भी लेके आए तो एग्जाम्पल। अच्छा, मैं तो उसी से लेता था क्लास। That's all. Standard form of rational number. Good morning students. So today we will discuss exercise 4 rational number. So let's start from the beginning. First of all, we know that this is the number line. The center point is 0. In right direction it is positive 1, 2, 3 up to infinite. In left direction it will be -1, -2, -3 and so on. This is the number line. In between 1 and 2 there are many numbers: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5, 6, 1.9. Okay, so it is number line. Now let's see natural numbers. What are natural numbers? Natural numbers starts from 1, 2, 3 and so on. It's called infinite. Means natural number starts from 1 and go up to infinite. All natural numbers are positive numbers, not negative. So they start from 1 to infinite. Means these are natural numbers. Natural numbers. Okay, now next one is whole number. Whole number starts from 0, 1, 2, 3 up to infinite. These are all positive, but it included 0 also. So 0 to infinite, these are called whole numbers. WN, whole numbers. Okay, next one is integers. Integers included minus and negative and positive both type of numbers, like -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. These all are 4, 5, all are integers. Okay, -4 is also integer, -11 is also integer, -15 is also integer, 15 plus 15 is also an integer, 50 is also an integer. These are called integers. Okay, now talk about rational numbers. What are rational numbers?
So there are two properties of rational number. Let's see. First property, numbers which can be in P upon Q फॉर्म. ऐसा नंबर्स जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 1/2, 2/3, 5/7, 7/9, -5/2, -7/9, -7/3, -7/3. Okay, these are called rational numbers. But there is one more condition. Condition number second, Q must not be equals to 0. Q 0 नहीं होना चाहिए. जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया, इट मीन्स वो जो नंबर है वो नंबर जो है आपका नॉन डिफाइंड हो जाएगा. जैसे देखो एग्जांपल, जैसे -2/0 या फिर 1/0 या फिर 7/0, इन सब का डिनोमिनेटर 0 है. इट मीन्स ये जो भी नंबर है, ये जो नंबर है, ये नंबर मैथ्स के अंदर डिफाइंड ही नहीं है. मैथ्स के अंदर ये जो नंबर है ये एग्जिस्ट ही नहीं करते. इट मीन्स दीज नंबर्स आर नॉट डिफाइंड नंबर. ये नंबर जो है ना, इन नंबर को आप नंबर लाइन पे भी शो नहीं कर सकते हो. ओके, सो रेशनल नंबर होने के लिए एक तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, और सेकंड प्रॉपर्टी ये बोली है कि Q मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. न्यूमिनेटर कैन भी 0, न्यूमिनेटर 0 हो सकता है, P 0 हो सकता है, बट Q 0 नहीं होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वन, स्टैंडर्ड फॉर्म. एक एग्जाम्पल लेते हैं रेशनल नंबर का. जैसे कंसिडर किया अपन ने एग्जाम्पल 2/3. ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में है, 2/3 की फॉर्म में, और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज द वैल्यू ऑफ Q इज़ 3. ठीक है, इट कैन बी नेगेटिव -5/7. इट इज एन आल्सो ए रेशनल नंबर. ओके, बट 22/16 इज इट ए रेशनल नंबर? यस, इट इज आल्सो ए रेशनल नंबर, बट इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. बिकॉज वाई? वी नो दैट 2 and 3 does not have any common factor. 5 and 7 also, but 22 and 16 have a common factor, and the common factor is 2. So we can cancel out by 2. So it will be 11, it will be 8. Now see, there is no common factor in 11 and 8. So it is an standard form. Standard form. This is the standard form. Okay. -5/7 is also in standard form, and 2/3 also in standard form. But 22/16 is not in standard form. Let's see one more example. 16/24. Is it in standard form? No. Why? Because they have a common factor 2 or 4 or 8 also. So we can divide by 8. So 8 2 is 16, 8 3 is 24. So the simplest form of 16/24 is 2/3. So the 2/3 is in standard form. Okay. Now we will start exercise 4A. Let's start from the question number first. What are the rational numbers? So rational number की definition मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो definition लिख देना. Give examples of 5 positive rational number. Positive rational number के example क्या क्या हो जाएंगे? 2/3, 5/7, 6/5, 11/13, 25/17. These are the rational numbers, positive rational numbers. नेगेटिव रेशनल नंबर्स के एग्जांपल तो इन सब के आगे माइनस लगा दो या फिर कुछ और भी लिख सकते हो. 5/7, -2/3, -11/15, -13/70, -19/21. These are negative rational numbers. Okay. And is there any rational number which is neither positive nor negative? Yes. And the number is 0. 0. 0 is a neutral number. So it is not positive, neither positive nor negative. How can we say that 0 is a rational number? So we can denote 0 in the form of P/Q, 0/1. So here P and Q, and Q is not equals to 0. Both conditions are satisfied. That's why 0 is a rational number. So 0 is also a rational number. Question number 2. Which of the following are rational numbers? Rational numbers के बारे में पूछा. So first part ले लेते हैं. 5/-8. Is it rational number? Yes.
P upon Q फॉर्म है और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. यस, इट इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर, यस. पार्ट फिफ्थ देखो इसका. सिक्स, इज इट ए रैशनल नंबर? यस. इफ देयर इज नो डिनोमिनेटर वी कैन टेक 1. सो इट इज इन P by Q form and Q is not equals to 0. It is also in rational number. Let's take seventh. 0. 0 is a rational number? Yes, I have already said that 0 is a rational number. Next, part 8th. 0 by 1. 0 by 1 equals to 0 and 0 is a rational number, so it is also a rational number. Next, ninth part. 1 upon 0. Is it a rational number? Not. Why? Because Q is not equals to 0. Q is equals to 0. So whenever the Q will be 0, it will be not defined. So it is not defined. This number is not defined in mathematics or on number line. So we can say that it is not a rational number. Not a rational number. 10th. 0 upon 0. So it is in the form of P by Q, but Q is not equals to 0. It is not satisfied. Here Q is equals to 0. So not defined again and not a rational number. आप लंच नहीं करते? लंच करेंगे सर. लंच वीडियो बनेगा उसके बाद कर लेंगे. कभी भी कर लो. ओके सर. Now question number 3. Write down the numerator and denominator of each of the following rational numbers. So numerator और denominator लिखना. Part first देखो इसका. Part first, question number 3rd, I think. It's not 2, it's 3rd. So question number 3rd, numerator and denominator write down करने. जैसे 8 upon 19 है, so ये numerator है और ये denominator है. थर्ड पार्ट और देख लो इसका. minus 13 upon 15, so it is numerator and it is denominator. That's all. Question number 4, let's see. Write each of the following integers as rational number. Rational number की फॉर्म में लिखना and write the numerator and denominator in each case. 5 को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना P by Q. तो P तो है, Q नहीं है तो डिवाइड में 1. जब भी किसी नंबर के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख दो. सो इट इज़ P and it is Q. So P is the numerator and Q is denominator. That's all. Fourth, 0. So denominator 1 बना देंगे. It is numerator and it is denominator. It is P and it is Q. That's all. Now question number 5. Which of the following are positive rational numbers? So let's take from first. 3 upon minus 5. So we can write it as minus 3 upon 5. So it is a negative rational number, not positive rational number. It is a negative rational number. Next, part 3. Minus 5 upon minus 8. So minus minus cancel out. So it will be 5 upon 8. It is a positive rational number, not a negative rational number. Fifth, 0 upon 3. 0 upon 3 equals to 0. Okay. So 0 is not a negative, not a positive. It is a neutral number. Neutral rational number. That's all. So now we will discuss question. Question number 6. Which of the following are negative rational numbers? First part, minus 15 upon minus 4. So minus से minus cancel. देखो 15 upon 4 आ गया. So it is a positive rational number, not a negative rational. Second, 0 by 1 neutral. Neutral
नॉट अ पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव. थर्ड पार्ट -5/7. तो नेगेटिव एक साइन है, इट मीन्स नेगेटिव रेशनल नंबर. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. फाइंड 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. जैसे फर्स्ट रेशनल नंबर है 6/11, इसके इक्विवेलेंट नंबर्स फाइंड आउट करना है. तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? रेशनल नंबर, जैसे देखो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? न्यूमरेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे उसी नंबर को डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कराएंगे, या फिर इसको जिस नंबर से डिवाइड करा उसको भी इसी नंबर से डिवाइड करा. देखो मैं अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 12, तो अगर इसको 2 से कराए तो इसको भी 2 से 22. ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कराए. आगे वापस इसको 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना देगा? ये मल्टीप्लाइड बाय 2 करा, मल्टीप्लाइड बाय 3 कराओगे तो कितना आएगा? 6 3 18. इसको भी 3 से 11 3 से 30. ये भी तीनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. अब 4 से करवा दो, 4 से करवाओ तो 6 4 से 24 और 11 4 से 44. ये फोर्थ रेशनल नंबर. फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रेशनल नंबर तो आ गए इक्विवेलेंट. एक और रेशनल नंबर चाहिए 5 से करवा दो, इसे मल्टीप्लाइड बाय 5. द नंबर विल बी 30/55. 11 5 55. ये भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. तो ये सारे जो रेशनल नंबर वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. क्यों? क्योंकि अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा तो वापस 6/11 ही आएगा. करके देख लो. जैसे इसको का सिंप्लीफाई किया तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 11, इसको 3 से डिवाइड करा है 6, इसको 3 से डिवाइड करा है 11, इसको 4 से डिवाइड करा है 6, इसको 4 से डिवाइड करा है 11, इसको 5 से डिवाइड करा है 6, इसको 5 से डिवाइड करा है 11. ओके, दैट्स ऑल. तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है? जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो उसी नंबर को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करो. दैट्स ऑल. सेकंड पार्ट में देखो इसका -3/8. पहले 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 6/16 और माइनस है तो साइन है. अब 3 से करा देते हैं 3 3 9/3 24 माइनस साइन है. अब 4 से करवा देते हैं 3 4 12 और 8 4 32 और माइनस साइन है माइनस साइन. एक बार 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 5 15 8 5 40. ये माइनस का साइन है माइनस का साइन. ये 4 नए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गए. इसके भी 1 2 3 4 इक्विवेलेंट रेशनल. ठीक है, ये हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए. अगर नेगेटिव है तब भी उसको पॉजिटिव बनाओ. कैसे बनाएंगे? देखो फर्स्ट था 12/-70, तो इसको माइनस के ऊपर देखो. बस बात -12/70. दोनों ही नंबर इक्वली, कोई प्रॉब्लम नहीं. इस नेगेटिव को ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं या ऊपर वाला नेगेटिव नीचे ट्रांसफर हो सकता है. बट क्वेश्चन में बोला कि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. इस नेगेटिव को ऊपर ट्रांसफर कर दिए. अब न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया, डिनोमिनेटर पॉजिटिव. नेक्स्ट 1/-, इस माइनस को ऊपर सेट कर दिया. एक है थर्ड -8/-90, इस माइनस को ऊपर सेट कर दिया. ऊपर माइनस पहले से एक और माइनस गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस और 8/90. तो अब 19 आ गया इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है. 9 से लगाकर 16 तक जो क्वेश्चन नंबर है वो सारे सेम टाइप के हैं और उनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्पल. देखो एक्सप्रेस 5/8 आपको गिवन है. इसको किस तरह से एक्सप्रेस करना? रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर. पहला डिनोमिनेटर सेट करना है इसका 15. इसका डिनोमिनेटर 15 सेट करना है. कितना? 15. अभी डिनोमिनेटर कितना है इसका? सॉरी डिनोमिनेटर नहीं, न्यूमरेटर 15 सेटअप करना है. तो 15 न्यूमरेटर कैसे सेटअप हो सकता है? अभी न्यूमरेटर कितना 5 को 15 कैसे बनाए? 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. जब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते 15 बनेगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो नया जो रेशनल नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15/24. ये कन्वर्ट कर दिया. 5/8 को नए रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया जिसका डिनोमिनेटर जो है जिसका न्यूमरेटर 15 है. बस दैट्स ऑल. ऐसे ही और नहीं और पास सेकंड पार्ट देगा -10 बनाना है न्यूमरेटर. 5/8 का जो न्यूमरेटर है वो -10 बनाना. अभी कितना है 5, तो 5/5 को 10 में कन्वर्ट करना है -10. तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? -2 से. तो -2 से लेकर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा तो डिनोमिनेटर को भी कराओ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराते हो. ओके, तो 5 × 10 माइनस का माइनस
2 is 6s, 2 8 is 16, माइनस का माइनस, दैट्स ऑल। तो -10 न्यूमरेटर आ गया। और क्या उसके बाद तो ये सारे आई थिंक हो ही जाएंगे आपसे। 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे, एक्सप्रेस -36 अपॉन 24 एज ए रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर। आपको न्यूमरेटर कितना बनाना है? फर्स्ट पार्ट में न्यूमरेटर मिलेगा -9, आपको -9 न्यूमरेटर बनाना है। कैसे बनाओगे? अभी न्यूमरेटर कितना है 36, -36 और -9 बनाना है। माइनस तो यही है न्यूमरेटर में और माइनस चाहिए आपको, और 36 की जगह 9 चाहिए। 36 को मल्टीप्लाई कराओगे तो बड़ा नंबर आएगा, अपने को छोटा नंबर चाहिए तो डिवाइड कराना पड़ेगा। इसको किससे डिवाइड कराओगे? 39। इसको 36 को किससे डिवाइड कराओगे? एक 9 बन जाए 4 से। इसको 4 से, न्यूमरेटर को 4 से कराया, इसको भी 4 से कराओ, तो द नंबर विल बिकम -36 को 4 से डिवाइड कराया 9, 9 4 से 36 और 4 6 है 24, 6 आ जाएगा। तो -9/6 ये आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाएगा, जिसका न्यूमरेटर जो है -9 है। इसका एक और पार्ट दे रखा है सेकंड में दे रखा है कि 6 बनाओ न्यूमरेटर, कितना 6। अभी न्यूमरेटर कितना है -36, इसको 6 कैसे बनाएंगे? -36/24 है, इसको 6 बनाना तो एक काम करेंगे, इसको डिवाइड कराएंगे -6, तो इसको भी डिवाइड कराना पड़ेगा सेम नंबर से -6 से। माइनस से क्यों कराएं? माइनस से डिवाइड कराएंगे तो माइनस को तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 36 डिवाइड होगा 6 से 6 टाइम्स, या 6 को 6 से डिवाइड करो 24 को 4 टाइम, और 24 प्लस का या माइनस का, प्लस माइनस को डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा? तो द आंसर विल बी 6/-। सो न्यूमरेटर +6 कन्वर्ट हो गया। Let's see on question number 16. What is question number 16 saying? Express 84 upon -147 as a rational number with denominator 7. First question के अंदर बोल रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो आपको 7 बनाना है। कैसे बनाओगे? अभी डिनोमिनेटर कितना -147, इसको 7 बनाना, तो -147 को किससे डिवाइड कराएंगे तो 7 बन जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कराएंगे तो इससे ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा, अपने को छोटा नंबर चाहिए 7, तो -147 को 84 अपॉन -147, तो -147 को डिवाइड कराना चाहिए आई थिंक 21 से, इसको 21 से डिवाइड करा तो इसको भी कराओ, 21 से इसको डिवाइड करा तो 4 टाइम्स, इसको इससे डिवाइड करा तो 7, माइनस भी आएगा, बट अपने को माइनस डिनोमिनेटर में -7 नहीं चाहिए, अपने को +7 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -7 आ रहा है, तो क्या करेंगे -21 से डिवाइड करें, तो -21 से डिवाइड करा तो यहाँ प्लस और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस का आएगा, और यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का है -21, सो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, मीन्स प्लस लिखने की जरूरत नहीं, तो -4/7 आपका नया फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा। दैट्स ऑल। इसका सेकंड पार्ट भी इजी है, कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। फर्स्ट पार्ट देखो इसमें 35/49, एक पार्ट और देखो, थर्ड पार्ट देख लो -27/45, एक पार्ट और देखेंगे अपन, वो है 8 पार्ट 299/-161। ओके, कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि अगर किसी के कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, ये 5 से कैंसिल होता है, बट ये 7 से होता है, ये भी 7 से होता है, 7 5 35, 7 7 49, अब कुछ कैंसिल नहीं होता, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, इसको भी कैंसिल किया, 9 से हो रहा है, ये भी 9 से हो रहा है, ये 9 से 3 टाइम्स, माइनस का माइनस, 9 से 9 3 27 और 9 5 45, दैट्स ऑल। स्टैंडर्ड फॉर्म अब कैंसिल नहीं हो रहा है। 3 से भी नहीं हो रहा,
5 से कोई नहीं मिला, 7 से नहीं हो रहा, 11 से नहीं हो रहा, 13 से नहीं हो रहा, 17 से नहीं हो रहा, 19 से नहीं हो रहा, 23 से हो रहा है। यस 23 से डिवाइड करते हैं। 23 से ये कितने टाइम्स, तो 299 डिवाइडेड बाई 23 और -616 डिवाइडेड बाई 23, दोनों 23 से हो रहा है। ये 23 से कितने टाइम्स, 23 बन जाए 23, 6 बच गया 23, 3 जाए 69 और ये 23 से 7 टाइम्स। माइनस का माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस को डिवाइड करेंगे माइनस आएगा, तो 13 अपॉन -7 ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। ओके